نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا 25واں پارہ جو ہے شروع کرتے ہیں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 اور 48 جو انسی ہے اس کی تلاوت کی گئی. تو الجزء السادس العشرون کا جو ہے ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بچے جو پیدا کرتی ہے، سب کا علم اس کے پاس ہے. اور جس دن اللہ ان مشرکوں کو بلا کر کے دریافت فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں، یعنی کن کو اللہ کے علاوہ جو ہے سمجھا جاتا تھا، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں. تب وہ سخت انکار کر دیں گے، اور جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں. بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد ہم اگر کسی رحمت کا مزہ چکھا دے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال ہی نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی. اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری ہی ہے. یعنی کہ یہ وہی اسی طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ میں حقدار ہوں، اور میں اگر قیامت ویسے تو پتہ نہیں قائم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور اگر ہو گئی تو مجھے وہاں پہ بھی اچھی چیزیں ہی ملیں گی. جیسے کہ سورہ الکہف میں باغ والے نے اپنے دوست کے ساتھ بات کی تھی. تو اس طرح کی جو آئیڈیالوجی ہے کہ مصیبت آ جائے تو اللہ یاد آ جائے، اور جب اچھائی کی چیزیں مل جائیں تو اس وقت اس طرح کے خیالات ہو، تو یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو زیادہ تر تو یہ کافر مطلب جو ہوتے ہیں جن کے پاس کہ صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حقانیت کے اوپر ایمان نہیں لاتے، جب جی چاہتے ہیں ڈاون ڈول سا ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے خیالات ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی ایمان والے کے اندر یہ بات آ جائے اگر یا مگر، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن منافق والی درجے کے اوپر بھی تو یہ جواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دیا ہے. اور جب ہم انسان پر انعام اکرام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر کر چل لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو اور پھر تم نے اسے نہ مانا تو اس سے بڑھ کر کے بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے اتنا دور چلا جائے. تو بات یہ ہے کہ جیسے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن جو سا ہے اگر صحیح نہیں ہے، اور نعوذ باللہ جیسے جیسے باتیں کی جاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے بنا لیا یا وہی نہیں آئی، تو مشرکین مکہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ جو جواب دیا ہے کہ صرف ایک بات کو اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ سچ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو جس اللہ کی طرف سے یہ ہے، جن کی اتنی طاقت ہے، اور اس کو نہ مانا جائے، تو پھر جو یہ باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اس طرح سے عذاب کی اور جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں، تو پھر کیا نتیجہ ملے گا؟ پھر جو اس دن آ جائے گا جس پہ قرآن بتا رہا ہے کہ واپس دنیا کی طرف نہیں آیا جا سکے گا کیونکہ دنیا تباہ ہو جائے گی، تو پھر بتائیں کہ بے وقوف یا بہکا ہوا کون ہوگا کہ جو حق بات کے خلاف جا رہا ہے. عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھا دیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گی یہی حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو نشانیاں ہیں قدرت کی اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کلام کے سچ ہونے کی وہ پتہ چل جائیں گی اچھے طریقے سے. تو بات یہ ہے کہ آج ہم جس زمانے میں موجود ہیں، ہم اپنے دور میں دیکھ لیں تو کتنی چیزیں جو قرآن پاک میں جو انسان کی پیدائش سے لے کر کے اس کی سٹیجز، کائنات کے بارے میں، اور یہ جو واٹر سائیکل ہے اور زمین میں جیسے چیزیں اگتی ہیں، پہاڑوں کا زمین میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سسٹم بیان کیا، ایک ایک بات اللہ تعالیٰ کی زیادہ تر تو ہے سچ ثابت ہو چکی ہوئی ہے. اور اس وقت بھی 1400 سال سے زائد عرصے میں جب یہ قرآن پاک اس وقت نازل ہو رہا تھا تو کتنی باتیں جو خوشخبریاں فتح کی اور اس طرح کی باتیں وہ کس طرح سے کامیابی ان کے ساتھ ہوئی تھیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں تو سچی باتیں ہیں کہ آپ کے رب کا ہر چیز سے آگاہ ہونا کافی نہیں ہے، اور یقین جاننے کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جاننے سے شک میں ہے. تو جو لوگ شک کرتے ہیں اس کتاب کے اوپر، اصل میں ان کو اللہ کا رب ہونا کافی معلوم نہیں ہوتا، اس لیے وہ اللہ کے ساتھ کہ اللہ کی شاید طاقت میں کوئی کمی ہے تو اور لوگ لے آتے ہیں. تو یاد رکھو کہ اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے سامنے بھی جو ہے وہ حاضر ہونا ہے. تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اس کو بھی. اور انہی الفاظ کے ساتھ یہ سورۃ چون سی ہے مکمل ہوتی ہے، اور آگے سورہ الشعراء جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ شعراء جو ہے وہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر اس کے اندر جو ہے 5 رکوع ہیں اور اس کے اندر 53 یعنی 53 آیات ہیں۔ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ حامیم عین سین قاف یہ حروف مقطعات ہیں اور 2 ٹکڑوں میں یہ جو ہے لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اس طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے۔ آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم الشان ہے۔ بے شک قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو فرشتوں کی جماعت، جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام کے لیے فرشتوں کی جو ہے جماعت ایک مخصوص ہے، اور اس کے علاوہ فرشتوں میں عبادت گزار بھی ہیں، اور یہاں پہ ذکر ہوا کہ فرشتوں کی ایک جماعت جو سی ہے وہ زمین والوں کے لیے استغفار کر رہی ہے۔ تو جو بندے اطاعت گزار ہوتے ہیں تو یہ جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جانب سے دعا کرنے کے لیے بھی، تو فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں مقرر ہیں، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس سلسلے میں، اور جس طرح کہ وہ عبادت میں بھی لگے ہیں اور زمین والوں کے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیاں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی، لیکن فرشتوں کو اور جس طرح سے نظر آ رہی ہیں اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر زمین والوں کے لیے استغفار کے لیے مطلب وہ مقرر ہیں، تو ایک لحاظ سے جو اچھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جانب پہ کس کے لیے کی ہوئی ہے؟ زمین والوں کے لیے، اور ایک انتظام کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ موضوع جو ہے وہ سورہ مومن کی آیت نمبر میں بھی جو ہے بیان ہوا تھا، 7ویں آیت میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جب نیک کام کرتا ہے تو جیسے کہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، جیسے رات کے وقت وضو جو سا ہے کر کے سونے کی بھی بات ہے، اس کے علاوہ نیکی کا کوئی بھی کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک جو فرشتہ یا جس عمل کے لحاظ سے جس طرح کا بھی سلسلہ ہے وہ مقرر ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اسٹیبلش سسٹم ہے، اور یہ اور بات ہے کہ انسانوں کو یا ہمیں کوئی ایسی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن جیسے کہ جو چیز نظر نہیں آتی، جو غیب کا علم ہے، ان میں جتنا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس چیز کو ہمیں اسی طریقے سے ماننا ہے۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ ہی معاف فرمانے والا رحمت والا ہے۔ تو دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم نہ رکھا ہوتا اور اتنی زیادہ مطلب یہ کہ یہ بھی ایک سسٹم ہے کہ جس میں کہ انسان کی معافی اور اس کے لیے دعا کرنے والی ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، تو اس میں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا جو سا ہے وہ سمجھ آتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا، اللہ ان پر نگران ہے۔ تو نگرانی تو ویسے اللہ تعالیٰ سب کی کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے خاص طور پہ یہ بات کی ہے اللہ کے علاوہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز جو سی ہے وہ نہ صرف دیکھی جا رہی ہے بلکہ اس کو محفوظ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکے والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دیں، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ سو ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لی ہے؟ حقیقت تو اللہ ہی کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس چیز پر آپ لوگوں کا اختلاف ہوا ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے، اور یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنا دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی چنا ہے اور چوپایوں کے جوڑے بنائے ہیں، تمہیں اس میں پھیلا رہا ہے۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے، تنگ کر دے، لیکن ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا۔ یہ بہت بات یہاں پہ توجہ کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پیچھے اپنا جو ہے دنیا میں جو مظاہر قدرت ہیں، جو ساری نعمتیں پائی جاتی ہیں، مطلب جاندار پائے جاتے ہیں، ان کی باتیں کرنے کے بعد اور بالکل یہی بات بیان کرنے کے بعد کہ زمین کی، آسمان اور زمین کی کنجیاں ان کے پاس ہیں، مطلب کہ جیسے کہ یہ سورہ آیت الکرسی میں جو سورہ البقرہ میں جو موضوع بیان ہوا تھا کہ اللہ کے پاس تمام طاقت ہے اور تمام خزانے، تمام چیزیں ان کے اختیار میں ہیں۔ اب یہاں پہ رک کر کے جو بات ہے کہ اگر اختیار میں ان کے ہیں، تو اگر ہمیں کوئی کام زمین سے لینا ہے، آسمانوں میں کام چاہیے یا کسی بھی جگہ پہ جو اس دنیا کے اندر کام چاہیے، تو اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر آگے روزی کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ روزی چاہے کسی کی زیادہ کرے یا تنگ کرے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اس کے بعد جو دین کی بات آتی ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت سمجھیں، اس کے بعد بات آئی دین کی، تو دین کی بات یہ ہے کہ اللہ نے وہی دین مقرر کیا ہے، یعنی یہ تبدیلی نہیں آئی کوئی دین کے اندر، جو نوح علیہ السلام کو ملا تھا۔ اور نوح کون ہے؟ نوح علیہ السلام جو ہے وہ آدم ثانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب نوح علیہ السلام جو ایک بہت بڑے دنیا کے اوپر سیلاب آیا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا تھا ایک کافر قوم کو ختم کرنے کے لیے، اور تمام دنیا میں جدھر بھی شرک پایا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ تو جو نوح علیہ السلام کے دور میں آیا تھا، تو انہوں نے اسی کو جو ہے وہی دین جو ہے مقرر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دین اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम तक वो एक ही दीन के ऊपर थे, और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन अता किया गया, जिसका हुक्म दिया गया कि उस पे अमल किया जाए, चाहे वो इस किताबी सूरत में भी मौजूद हो, तो बात है कि वही दीन है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने बाकायदा ये बता रहे हैं कि जो बज़रिया वही हमने आपकी तरफ भेज दिया है, जिसका ताकीदी हुक्म हमने इब्राहीम और मूसा और ईसा को दिया। ये बात यहाँ पे कन्फर्म हो जाती है कुरान पाक में, यही चीज़ इसलिए की हुई है कि इस दीन को कायम रखना और इसमें फूट ना डालना, और जिस चीज़ की तरफ आप इन्हें बुला रहे हैं वो तो मुशरिकीन पर गिरा गुजरती है। तो जो चीज़ किसी ग्रोह को गिरा गुजरे वो मुशरिकीन का है, जो अल्लाह के अलावा उसको मतलब समझते हैं कि उनकी पूजा होनी चाहिए, उनके बारे में इस तरह के ख़्यालात होने चाहिए। बाकी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने नाम लिया है बाकायदा। तो जो शरीयतें इनके ऊपर जारी और सारी हुई, तो वो भी यही चीज़ थी। अब ये कि अब अहले किताब जो अगर अपनी जानिब से रुके हुए हैं और वो इस चीज़ में फूट डाल रहे हैं, क्योंकि आगे हुक्म है कि फूट नहीं डालना, तो फूट डाल रहे हैं, तो उनका जो अमल है उसका वबाल अब उनकी जानिब पे है। क्योंकि किसी भी तरीके से वही को जो है मानना और जो या इसका इनकार करना, ये चूँकि उनको इजाज़त है कि वो दोनों में से कोई सा भी फैसला कर रहे हैं, तो इसका फिर हिसाब-किताब वो खुद देंगे। तो मुशरिकीन के बारे में तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि शुरू से ही मुशरिकीन को एतराज़ होता है। अल्लाह जिसे चाहता है अपना बरगज़ीदा बनाता है। यहाँ पे इस बात से अंदाज़ा कर लगा लें, और ये चीज़ खोल कर के बयान कर दी गई कि अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी से ये वही किसकी जानिब नाज़िल हुई है, किसको अल्लाह ने मबूस फरमाया, अल्लाह के फ़ैसले। और जो भी इसकी तरफ रुजू करेगा और उसकी सही रहनुमाई करते हैं, और इन लोगों ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद ही इख्तिलाफ किया, वो भी बाहमी ज़िद और बहस है। अगर आपके रब की बात एक मुकर्रर वक़्त तक के पहले करार ना पा गई होती, तो यकीनन इनका फ़ैसला हो चुका था, और जिन लोगों को इनके बाद किताब दी गई है, वो भी इनकी तरफ से उलझन में, शक में पड़े हुए हैं। बस आप लोगों को अपनी ही तरफ बुलाते हैं, जैसा कि आपको हुक्म हुआ है, इस पर मज़बूती से जम जाएँ, इनकी ख्वाहिशों पे ना चलें, और कह दें कि अल्लाह ने जितनी किताबें नाज़िल फरमाई है, मेरा इन पर ईमान है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इंसाफ़ करता रहूँ। हमारा और आप सबका परवरदिगार अल्लाह है। हमारे अमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं। और तुम में से जो कोई भी कट-हुज्जती जो है, और तुम में से कोई कट-हुज्जती नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि बहस-मुबाहिसा जो है अगर कोई करे इनमें से, तो उनके साथ कोई बहस-मुबाहिसा जो-सा है वो इस मामले के ऊपर नहीं होगा। और जो झगड़ा वगैरह है जो वो नहीं किया जाएगा। लेकिन अल्लाह जो है हम सबको जमा करेगा और इसी की तरफ लौटना है, क्योंकि ये इस चीज़ का जवाब है। अब चाहे अहले किताब ज़्यादातर जो है अपनी ख्वाहिश की वजह से वो जिस तरह से भी चलना चाहें, तो उनको भी यही जवाब है, और जो मुशरिकीन जो हैं अल्लाह ताला के कलाम के मुकाबले में कोई चीज़ें लेके आए, उनको भी यही जवाब है। जो लोग अल्लाह की बातों में झगड़ा डालते हैं, इसके बाद मखलूक उसे मान चुकी है, इनकी कट-हुज्जती अल्लाह के नज़दीक बातिल है। ये जो झगड़ा होता है, वो अल्लाह के नज़दीक जो है वो बिल्कुल जो है वो बातिल है। इन पर गज़ब है और उनके लिए सख्त अज़ाब है। अल्लाह ने हक़ के साथ किताब नाज़िल फरमाई है और तराजू भी उतारी है, यानी इंसाफ़ का पैमाना। ये जो इंसाफ़ के लिए कुछ हदूद मुकर्रर की हैं, कुछ अल्लाह ताला ने समझाया है कि जो एक कानून बनाया है, तो ये जो तराजू जो है ना वो ये है। और आपको क्या खबर कि शायद क़यामत करीब ही हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसे भी जो मबूस किया जाना है, उसके बाद क़यामत दोनों एक साथ-साथ ही हैं। और जो हमारा वक़्त है, हमें लगता है कि काफ़ी सालों के ऊपर हम इसको दुनिया में इसको इसकी मिक़दार को देखते हैं, तो आसमान वालों के लिए तो ये वक़्त बिल्कुल ही ऐसे जैसे पलक झपकने वाली चीज़ें हो रही हैं। तो लिहाज़ा अल्लाह ताला जिस तरह क़यामत को नज़दीक देख रहे हैं, उस तरह हम नहीं देख पाते, लिहाज़ा उनका ये कहना कि क़यामत नज़दीक है, तो बिलाशुबा ऐसा ही है। इसकी जल्दी उन्हें पड़ी है जो इसे नहीं मानते। और जब ये जो लोग अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे भी और जिस तरीके से बात करते थे कि क़यामत ले आएँ या अज़ाब ले आएँ, तो ये जो नहीं मानते उनको इसकी जल्दी पड़ी हुई होती है कि उसको ले आएँ। और जो इस पे यकीन रखते हैं वो तो इससे डर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की वो बात है कि क़यामत का क्या मंज़र है, उस दिन क्या होगा, और एक दफ़ा क़यामत कायम हो जाती है, ये दुनिया ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद का जो यौमुद्दीन है, उसका इंसान को खौफ़ दिन में होता है कि वहाँ पे किस तरह का हिसाब-ओ-किताब होगा। तो जो इल्म इस चीज़ का आ जाता है, इसके ऊपर यकीन होता है, तो इंसान को तो इस चीज़ से जो है डर लगता है कि इंसान के अमाल की फ़िक्र होने लगती है। उल्टा जो इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करे, तो बड़े निडर और बेखौफ होके ऐसी बातें कह रहे हैं। तो ये बात है कि जो खौफ़ खाते हैं उन्हें उन्हें क्या है, उन्हें इसके हक़ होने का पूरा इल्म है। याद रखो कि जो लोग क़यामत के मामले में झगड़ रहे हैं, वो और दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं। यानी इस कदर वो हक़ से दूर चले गए हैं कि उनको कोई बात समझ नहीं आ रही। तो बिल्कुल जैसे अगर मोबाइल को हम लेते हैं कि किसी सिग्नल वाली जगह के नज़दीक होते हैं, तो बात जो-सी होती है उसमें मोबाइल में वो सिग्नल ठीक होते हैं, तो फ़ंक्शन उसके काम करते हैं। और अगर वो मोबाइल सिग्नल वाली जगह से दूर हो, जहाँ सिग्नल ही नहीं आ रही, तो मोबाइल जो है वो उसके अंदर जितने भी ऐप्स होंगी, तमाम फ़ीचर्स वो सब नहीं चलेंगे, क्योंकि वो जो सिग्नल्स हैं वाई-फाई के, वो उसको मिल ही नहीं रहे। तो ये मोबाइल जो होता है जैसे गैजेट एक है, वो अपने पास जो उसकी कहना चाहिए हिदायत जो उसको मिलती है या जो जिसके ऊपर वो चल रहा है, तो उसके साथ वो काम करता है, उसके अलावा वो बेकार हो जाता है। तो इसी तरह इंसान को अल्लाह ताला ने पूरा मुकम्मल बना के इस दुनिया में छोड़ा है, ज़िंदगी दी है, तो अगर हिदायत ही नहीं होगी और उसके साथ जितनी खूबसूरतियाँ या खूबियाँ इंसान के अंदर मौजूद हैं, वो किस काम की होंगी? इंसान को तो अगर हिदायत ना मिले, तो वो तो गुमराही में जा पड़ता है। और फिर और बात है कि जब वो उस दिन यौमुद्दीन को जब अल्लाह ताला जो है मीज़ान कायम करेंगे, तो उस दिन ऐसे लोग जो उनसे हैं, उनके पास अमालनामे की किताब में ऐसी चीज़ें ही नहीं होंगी कि जिससे वो अपने आप को बचा सकें। तो तर्जुमे
की तरफ देखते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा ही लुत्फ़ करने वाला है, जिसे चाहता है कुशादा रोज़ी देता है और बड़ी ताकत और बड़े ग़लबे वाला है। तो ऐसी आयत की तिलावत करने के बाद अल्लाह ताला से रिज़्क़ और उसकी दुआ वग़ैरह करनी चाहिए। जिसका इरादा आखिरत की खेती का हो, हम इसे इसकी खेती में तरक्की देंगे, और जो दुनिया की खेती की तलब रखता हो, इसे हम इसमें से ही कुछ दे देंगे, और इस शख़्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। क्या इन लोगों ने ऐसे अल्लाह के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं, जिन्होंने ऐसे इकाम दीन मुकर्रर कर दिए हैं जो अल्लाह के फरमाए हुए नहीं हैं? अगर फ़ैसले का दिन का वादा ना होता, तो भी इनमें एक फ़ैसला कर दिया जाता। यकीनन इन ज़ालिमों के लिए बहुत ही दर्दनाक अज़ाब है। आप देखेंगे कि ये ज़ालिम अपने अमाल से डर रहे होंगे, जो यकीनन इन पर वाक़या होने वाले हैं, और जो लोग ईमान लाए हैं, उन्होंने नेक अमल किए, वो बहिश्तों के बागात में होंगे, बहिश्त यानी कि जन्नत, और जो ख्वाहिश करेंगे अपने रब के पास मौजूद पाएँगे, यही है बड़ा फ़ज़ल। यानी कि इस दुनिया में इंसान जो हर चीज़ है उसके लिए कोशिश और तगदो करनी पड़ती है, और उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके लिए हमें अल्लाह ताला से रुजू करना पड़ता है, उनसे दुआ माँगनी पड़ती है कि वो चीज़ें वाक़या हों, क्योंकि हर चीज़ की हकीकत और ताकत इंसान के पास तो नहीं है, और ना ही इंसान के पास ये ताकत है कि वो जो चाहे वो उसको मिल जाए। तो वो चाहे खुराक हो, चाहे और भी बहुत सी चीज़ें हो। देखिए, हमारी तो जो फल और सब्ज़ी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो उसको बनने में भी एक लंबा प्रोसेस लगता है। लेकिन अल्लाह ताला जिस फ़ज़ल का ज़िक्र कर रहे हैं, जो बहिश्त के बागात में होगी, कि वहाँ पे जब सारे फ़ैसले वाले दिन के बाद सब लोग वहाँ पहुँच जाएँगे, तो जो आखिरत में हिस्सा की बात हुई है, तो जो उनका आखिरत में हिस्सा है, वो ये कि वो अल्लाह ताला के पास जब वो पहुँचेंगे, तो वो जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे, वहाँ फ़ौरी तौर के ऊपर वो सामने मौजूद है। तो ये दुनिया का, और आखिरत में जो अल्लाह ताला फ़ज़ल दे रहे हैं मतलब जन्नत में, उन मुकामात पे, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है? तो इसको अल्लाह ताला ने फ़ज़ल कहा है, कामयाबी कहा है, कि इंसान ऐसे मकाम पे पहुँच जाए कि जहाँ पे वो अल्लाह के नज़दीक भी हो, वहाँ पे उसको तमाम आसाइशें मिलें, और वहाँ पे वो जो सवाल करेंगे, वो उनके सामने ये चीज़ मौजूद होगी। और जो ज़ालिम है, वो अपने नामा-ए-माल को देख के, जो पहले आयत में बयान कर दिया गया है, कि वो उसको डरेंगे, क्योंकि जो उनको नज़र आ रहा होगा कि अब उनके ऊपर वाक़या होने वाली है, और दूसरी जानिब ईमान वालों के लिए फ़ज़ल की बात की गई है। यही है वो जिसकी बिशारत अल्लाह अपने उन बंदों को दे रहा है, जो ईमान लाए और नेक अमल किए। तो कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई बदला तो नहीं चाहता, मगर मोहब्बत रिश्तेदारी की, और जो कोई शख़्स नेकी करे, तो हम उसके लिए उसकी नेकी में हुस्न बढ़ा देंगे। तो बदला नहीं चाहता, मगर मोहब्बत रिश्तेदारी की जो है, इससे इससे मुराद ये चीज़ ली जाती है कि तमाम कबाइल कुरैश और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान रिश्तेदारी का ताल्लुक था, और वो उन्हीं में से, मतलब उन्हीं की नस्ल में से थे। और बात ये है कि अगर जैसे कि कबायली निज़ाम में अपने कबीले की तरफदारी जो होती है, उसकी रिश्तेदारी का बहुत लिहाज़ किया जाता है, और जो अपने कबीले में से हो, उसकी इज़्ज़त और तकरीम की जाती है ज़्यादा। तो ये कि अब चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता भी है, तो लिहाज़ा वो कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे, और वो उनकी तकरीम ही कर रहे हैं कि उनके दस्ते बाज़ू बन रही हैं। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अल्लाह ताला ने ये चीज़ बयान की है कि जो क़राबत की मानी है, कि रिश्तेदारी है, उसको तो देखना चाहिए, और फिर बात को समझना चाहिए कि ये इस तरह से है। यही मानी जोन-सी है इस चीज़ के, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किए हैं कि मेरी और तुम्हारे दरमियान जो क़राबत रिश्तेदारी है, इसको कायम रखो। सही अल-बुखारी की हदीस नंबर 4818 है, और बाज़ ने इस चीज़ को अल्लाह से नज़दीकी यानी तक़र्रुब का मुराद लिया है। लेकिन ये जो है मतलब इसमें ये चीज़ है कि मेरी मतलब उस चीज़ को वो इसमें तफ़सीर में समझते हैं, कि जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फ़ाज़ हैं कि सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। लेकिन जो आयत की तफ़सीर जोन-सी है, बिल्कुल वही ठीक है, जैसे कि अल्फ़ाज़ इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है मतलब बयान किए, और वो ओवरऑल पूरे कुरैश की बात हो रही है, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की बात नहीं हो रही है। तो चूँकि वो उन लोगों के दरमियान में से, और उन्हीं को, कुरैश को ही वो मतलब तबलीग कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है उनको नेकी की बात पहुँचा रहे हैं, अल्लाह ताला की बात पहुँचा रहे हैं, और इसमें वो मोहब्बत रखते हैं अपने कबीले से, इस वजह से। तो जो तर्जुमे को देखते हैं, तो जो शख़्स कोई नेकी करे, हम उसके लिए उसकी नेकी में हुस्न बढ़ा देंगे। अब ये आम तौर के ऊपर भी हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी, और तमाम बाकी मुसलमानों के लिए भी। जो नेकी की जाएगी, तो उसमें हुस्न बढ़ा देंगे, तो अल्लाह ताला उसका बदला जोन-सा है, वो उसकी नेकी के दर्जे से बढ़ चढ़ के देने पे कादिर है। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बहुत कदरदान है। यहाँ अल्लाह ताला की बहुत ही खूबसूरत सिफ़ात बयान की गई हैं, कि वो जो हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है गफ़ूर और शकूर हैं। तो शकूर जो होते हैं, वो गफ़ूर को तो हमें समझ आता है कि गुनाह को बख्श देना, माफ़ कर देना, मग़फ़िरत अता करने वाले। लेकिन कदरदानी क्या होती है? कदरदानी ये है कि जिसने जितनी नियत के साथ, अच्छाई के साथ अल्लाह की राह में काम किया, अल्लाह की खातिर अपनी नियत ख़ालिस की, और अपने आप को थकाया अल्लाह की राह में, तो अल्लाह ताला की निगाह तो इंसान की नियतों पे भी है, दिल पे भी है। कितना कोई इस हद तक गया, तो अल्लाह ताला उसको उसकी अमल के मुताबिक जो है वो बदला देने पे कादिर है, यानी कि वो कदर करेंगे। तो क्या ये कहते हैं कि अल्लाह ने इस पैगंबर ने अल्लाह पर झूठ बाँधा है? यही पैगंबर के बारे में कहा जा रहा है कि वो अल्लाह के बारे में जो बातें बयान कर रहे हैं, वो ऐसी नहीं है। तो नाउज़ुबिल्लाह, अगर अल्लाह चाहे तो आपके दिल पर मोहर लगा दे, तो और अल्लाह अपनी बातों से जो है झूठ को मिटा देता है। तो अल्लाह ताला की तो ये कुदरत है कि वो किसी के भी दिल पे चाहे मोहर लगा दे, या किसी को भी इस तरह से कर दे कि लोग बातों को ना समझ सके। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह तो ये जो झूठी बात करे, अल्लाह इसको भी खत्म कर सकता है, और सच को साबित रखता है। यकीनन वो सीने की बातों को जानने वाला वही है, जो अपने बंदों की
توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ ایمان والوں اور نیکوکاروں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھ کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے؟ جو اللہ کو اللہ مان کر کے اللہ سے دعا کریں گے۔ ویسے اوور آل دنیا میں دیکھا جائے سب لوگوں کو رزق اللہ ہی دے رہے ہیں، جو وہ لوگ چاہے کسی اور سے بھی مانگ رہے ہوں تو یا اللہ کو عین اس وقت یاد کریں کہ ویسے آگے پیچھے یاد نہیں کرتے، مانتے نہیں، لیکن جب مصیبت آئے تو اللہ کو پکارا جاتا ہے تب بھی اللہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت پکارنے والے، مشکل میں آسانی میں، اور ان کے اوپر ایمان رکھنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ لازم سنتے ہیں، اسی لیے ایمان والوں اور نیکوکاروں کی بات آئی، اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھ کر دیتے ہیں، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، یعنی کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہ کرتے۔ اور چونکہ انسان کی یہ عادت اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان بھی کی ہے کہ جب برا وقت کوئی آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب کوئی آسانی دے دی جائے، نعمت دے دی جائے تو وہ بھول کر کے جو ہے اللہ کو بھول جاتے اور باتوں کی طرف لگ جاتے ہیں۔ اب یہ جو اس کے علاوہ مزید اس آیت کی جو تفسیر ہے کہ فساد کی بات جو ہے تو وہ یہ ہے کہ جب کوئی آپس میں جو مقابلے کیے جاتے ہیں نا، جیسے کہ ہر چیز میں اپنی تو خیر ویسے بھی انسان کے اندر مقابلہ کرنے والی یہ جو ایک صفت پائی جاتی ہے جو بری ہے، جبکہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ روزی دینے تو اللہ کی ذات ہے، کسی کو زیادہ دی کسی کو کم دی۔ تو یہاں بھی جو فساد ہے وہ اس بات پہ بھی ہو جاتا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دکھاوا اور مطلب یہ کہ ایک دوڑ لگ جاتی ہے، آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا۔ واللہ علم، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے پتہ چلتا ہے کہ جو اس وقت تقسیم رکھی ہے اپنے پاس رکھی ہے اور جس طریقے سے رکھی ہے تو اس میں ہی کوئی حکمت ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے تو زمین میں فساد ہوتا، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرما دیتے ہیں، اور وہ اپنے بندوں سے پورے خبردار ہیں اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ اور وہی لوگ جو ان کے لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتے ہیں اور اپنی رحمت پھیلا دیتے ہیں، وہی کارساز ہے، قابل حمد و ثنا ہے۔ اور ان کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان کی پیدائش ہے، اس میں جانداروں کا پھیلانا ہے، اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہیں وہ انہیں جمع کر دیں، اور جو کچھ بھی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے وہ اس کی اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ اور تم ہمیں زمین کے عاجز کرنے والے نہیں ہو، تمہارے سوا اللہ کے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ تو جو بھی انسان ہے دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کو ان کی جو قدرت ہے ان کی آگے کھڑے ہو کر کے کسی بھی چیز کو روک ٹوک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اتنا کوئی کسی کے پاس اختیار ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے سوا جو جب کوئی مدد لینی ہوتی ہے تو اللہ کے سوا کارساز معاملات کو حل کرنا اور مدد جو ہے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اور دریا میں چلنے والے پہاڑ جیسی کشتیاں ان کی نشانیوں میں سے ہیں، اگر وہ اللہ چاہے تو ہوا بند کر دیں اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی رہ جائیں، یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر گزار کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے، وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرمایا کرتا ہے، تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے بس وہ زندگانی دنیا کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اسے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پہ ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول فرماتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ان کا ہر کام آپس کے مشوروں سے ہوتا ہے۔ جتنی اچھی باتیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی عباد الرحمان کی بیان فرمائی جا رہی ہے، پہلی بات ہے کہ اللہ کے فرمان کو جو ہے ماننے سے بھی پہلے کی جو یہ باتیں ہے کہ اللہ کے پاس جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں، یہ ہے ایمان کی بنیاد۔ پھر اس کے بعد ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں، اور غصے کے وقت بھی وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا کہ غصے کو بھی وہ کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کسی کو کی ذات سے اپنا بدلہ نہیں لیتے، اور وہ اللہ کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد وہ اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تو رب کی فرمان کو قبول کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر وہ بھی بات اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جو ہے وہ مشروط کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ آپس میں جس جگہ پہ موجود ہو، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوں، اپنے کام کی جگہوں پہ ہو، تو وہ ایک اپنے آپ تک جو ہے وہ بات کو نہیں رکھتے، خیر کو وہ پھیلاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ مسلمانوں سے مشورہ کرو، اور یہ آل عمران کی آیت جو سی ہے 159 ہے، اور جس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنگی معاملات سے لے کر کے بہت سارے معاملات جو ایک طرح سے وہ ریاست کے معاملات بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی مشاورت کے ساتھ جو حل کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ مشاورت کے لیے انہوں نے 6 آدمیوں کو بھی نامزد کیا تھا، 6 صحابہ کو، جس کے اندر کہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ان سے تھے، یہ تمام کے تمام شامل تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلافت کے لیے جو ہے وہ مقرر فرمایا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف، اسی آیت کی طرف جو سی ہے کہ آپس میں جو مشورہ ہے نا، تو یہ اس کی طرف آ جاتی ہے کہ ڈیموکریسی کا جو یہ ثبوت ہے اور یہ جو اصول ہے جمہوریت کا، یہ یہاں سے لیا جائے، کیونکہ اسلام میں جمہوریت کو مشاورت کے ہم معنی سمجھنا یکسر غلط ہے، کیونکہ اسلام میں طے شدہ شرعی دینی امور اصول جو چیزیں بتا دی گئی ہیں جن کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی، جن احکام کا اندر، اور وہ تو تبدیلی
तब्दील नहीं हो सकती। उसके ऊपर तो किसी भी किस्म की जमहूरियत जो आज के मामले में समझा जाता है, डेमोक्रेसी जो है उसको ठीक कर लेगी, या ये कि कोई ऐसी कमेटी बैठे तो उसमें नहीं हो सकता। लिहाजा टोटल मानी जो उनसे है, जिस तरह से अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान फरमाए हैं, वो उनके ऊपर जो खासतौर पे वेस्टर्न डेमोक्रेसी का जो एक ख्याल है उससे बिल्कुल टोटल फ़र्क है। और यहाँ पे जो असूल अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं और वो बिल्कुल और तरीके से चलेंगे, क्योंकि रियासत की जो टॉप पे एक लिहाज से जो कहना चाहिए हुकूमत है, वो इंसानों की नहीं मानी जाती, ठीक है। आम तौर के ऊपर जब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो इसमें होती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो वो ये है कि ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से नहीं चलती। उसमें ये है कि जो गवर्नमेंट भी जो होगी, गवर्नेंस चलाना, जो उसको किस तरह से चलाया जाए, तो उसमें जो सा है अल्लाह ताला के अहकामात और अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से जो चीज़ हमें मिल रही है, इनमें तब्दीलियाँ नहीं, अलबत्ता आम बाकी मामलात में, और इन्हीं ये जो अहकाम है, लॉ है, उसको नाफिज़ करना, उनमें कंडीशंस होती हैं, और उन सब को आपस में जो मशवरा करना है, उनकी मुशावरत और वो सारी चीज़ें उसके ऊपर वो लेवल पे आएँगी। लिहाजा एक इस्लामी जो उनकी हुकूमत होती है और इस्लामी तर्ज़ तरीका घरों में रहने का या बाहर हुकूमत का जो तरीका होगा, वो टोटल एक लिहाज से फ़र्क होता है। उसमें किसी इंसान के अंदर जो अगर ताकत नहीं, बल्कि ये इंसान जो है उस जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो चीज़ एस्टेब्लिश हो चुकी हुई है, उसको नाफ़िज़ करने के वो जो हैं वो मतलब कि होना चाहिए कि वो उसके जो उनसे होते हैं ज़िम्मेदार होते हैं। और जो बाकी की जगहों के ऊपर और मज़ीद जो उनसे इसके अलावा जो असूल व कवायद बनाए गए हैं, लॉ बना है, और वो सारा के सारा वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो। मेंटेनेंस और ये मशावरत, ये सारी उसके बाद ये लेवल आते हैं। तो आयत की तरफ वापस चलते हैं कि इनका हर काम आपस में मशवरे से होता है, और जो हमने इन्हें दे रखा है उसमें से हमारे नाम पर देते हैं। इन्हें अल्लाह ने जो रिज़्क दिया हुआ है, ये इफ़रादी तौर पे भी है, इज्तिमाई तौर के ऊपर भी है। अल्लाह ताला ने जो रिज़्क दिया होता है उसी के अंदर से इंसान को देना है। तो बात क्या आ गई, अल्लाह का नाम आ रहा है इसके अंदर कि अल्लाह की तरफ चीज़ें और रिज़्क जो है वो मंसूब हो रहा है। लिहाजा इंसान अपनी जो उसकी पास चीज़ें हैं वो उनको अल्लाह की राह में दे, और जब इन पर ज़ुल्म और ज़्यादती हो तो सिर्फ बदला ले लेते हैं, और बुराई का बदला इस जैसी ही बुराई है। तो ये है कि जब अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है मुसलमानों की, अगर कोई ज़ुल्म और ज़्यादती हो तो उसका बदला लिया जाए, लेकिन ये कि उतना ही जितना कि लिया गया है, और वो फिर ये कि जो माफ़ कर दे और इस्लाह कर ले, उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मा है। फिलवाक़िया अल्लाह ज़ालिमों को दोस्त नहीं लगता। तो ज़ालिम कौन होता है कि जितना उसके साथ नुकसान हुआ या ज़्यादती हुई, उससे ज़्यादा वो जो है किसी के साथ ज़्यादती कर दे। तो इस तरह से ज़ालिम जो होते हैं ना, अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला उनको दोस्त नहीं लगता। और जो शख़्स अपने मज़लूम होने के बाद बराबर का बदला ले ले, तो ऐसे लोगों पर कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई रास्ता नहीं, उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगेगा। ये रास्ता सिर्फ़ उन लोगों पे है जो खुद दूसरों पर ज़ुल्म करें और ज़मीन में नाहक फ़साद करते फिरें। यानी कि उनको इसका हक़ नहीं था, ना किसी ने उनके ऊपर ज़्यादती की, लेकिन उन्होंने बढ़ के आगे से ज़्यादती कर दी और ज़ुल्म किया। तो यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो दोबारा रुक कर के इस आयत को इस तरह से समझना चाहिए कि जब कोई किसी के साथ कोई ज़्यादती करता है, कोई तकलीफ़ पहुँचाई है, उस चीज़ का अगर बदला होता है या जितना हुई है उतनी बात की जाए। लेकिन अगर किसी ने वो तकलीफ़ दी ही नहीं है और वो नाहक इसलिए लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है, फ़साद अगर कायम कर दिया जाए, तो फ़साद कब होता है कि जब ज़ुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो फिर फ़साद फैलता है। एक मतलब माशरे में एक अजीब-सी सिचुएशन हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने कहा है ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। जो शख़्स सब्र कर ले और माफ़ कर दे, यकीनन ये बड़ी हिम्मत के कामों में से एक काम है। हम जैसे कि बहुत ज़्यादा दफ़ा सुनते हैं कि सब्र करें, सब्र या इस तरह से माफ़ी का ये बात, तो अल्लाह ताला तो इसको कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी हिम्मत के कामों में से, जिसको कि बड़ा आम सा समझा जाता है कि जी सब्र कर लिया, माफ़ कर दिया। तो ये इंसान के लिए बड़ी हिम्मत का काम है कि वो कोई ज़्यादती बर्दाश्त कर ले और किसी चीज़ का वो बदला ना ले। तो ताकतवर कौन हुआ? इसमें अल्लाह ताला ने ये बयान कर दिया कि जो बदला ले रहा है, ठीक है बदला लिया उसने, लेकिन वो इतनी हिम्मत वाला नहीं बना, बल्कि ज़्यादा हिम्मत वाला तो वो इंसान बना जिसने माफ़ किया और बदला नहीं लिया। और जिसे अल्लाह भगा दे, उसे उसके बाद कोई चारा साज़ नहीं, कि आप देखेंगे कि ज़ालिम लोग अज़ाब को देख कर के कह रहे होंगे क्या वापस जाने की कोई राह है? इन्हीं से कोई बचा जा सकता है? तो फिर आप इन्हें देखेंगे वो जहन्नुम के सामने ला खड़े किए जाएँगे, मारे ज़िल्लत के कुबड़े हुए जाते होंगे, कनखियों से देख रहे होंगे कि ईमानदार जो उनसे हैं वो ईमानदार साफ कहेंगे कि हकीकी ज़ियाकार वो हैं जिन्होंने आज क़यामत के दिन अपने आप और अपने घरवालों को नुकसान में डाल दिया। याद रखो कि यकीनन ज़ालिम लोग दायमी अज़ाब में हैं। तो जब क़यामत कायम होगी, उस वक़्त के मंज़र अल्लाह ताला ने बयान किए हैं कि जब उनके गुनाह पेश किए जाएँगे और सामने जहन्नुम भी सामने होगी, ये कि गुनाह का सवाब उनके सामने पेश हो जाएगा। और फिर साथ ये कि दूसरे लोगों की जो है वो उनको जीते हुए देखेंगे, यानी कामयाबियाँ उनकी देखेंगे। तो ज़िल्लत से क्या हो जाएगा कि वो झुक जाएँगे, अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगे, और फिर इधर-उधर से देख रहे होंगे कि कोई जगह और रास्ता निकल आए कि ताकि वो इस सिचुएशन से, इस हालत से वो निकल जाएँ, भाग जाएँ कहीं पे। तो उस वक़्त जो लोग कामयाब होंगे, जो अल्लाह की बात पे चले होंगे, तो तब वो पुकारेंगे कि आज हकीकत में नाकाम कौन हुआ? ज़ियाकार यानी नाकाम कौन हुआ कि जो आज के दिन खसारे में चला गया, नुकसान में चला गया, कि अपने आप को भी अल्लाह ताला के आगे अज़ाब के आगे पेश किया और अपने घरवालों को भी। तो पता ये चला कि बाज़ दफ़ा जो एक इंसान हो या जिसके पीछे तमाम घरवाले जो हैं हो, और वो अगर गलती से गलत रिश्तों की तरफ चला जाए, तो वो उसका तमाम उसको सारे घरवाले भी इसी तरह से फ़ॉलो करें, तो वो ना सिर्फ़ खुद जो है वो नुकसान में जाएँगे उस दिन, ना और अपने घरवालों को भी जो है वो नुकसान में उस दिन लेकर के जाएँगे। और इनकी कोई मददगार नहीं जो अल्लाह से अलग उनकी इमदाद कर सके, या जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। अपने रब का हुक्म मान लो, इससे पहले कि अल्लाह की जानिब से वो दिन आ जाए कि जिसका हट जाना नामुमकिन है। तुम्हें उस रोज़ ना तो कोई पनाह मिलेगी, जगह मिलेगी, ना छुप कर अनजान बन जाने की। अगर ये मुँह फेर लें
तो हमने आपको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। आपके ज़िम्मे तो सिर्फ़ पैगाम पहुँचा देना है। हम जब कभी किसी इंसान को अपनी मेहरबानी का मज़ा चखाते हैं, तो वो इस पर इतरा जाता है, यानी इंसान शेखी मारने लग जाता है। हालाँकि वो उसने नहीं किया, अल्लाह ने दिया है। और अगर इन्हें इनके अमाल की वज़ह से कोई मुसीबत पहुँचती है, तो बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है। अल्लाह ताला के तमाम करम और जितनी नेमतें उस वक़्त भी हासिल होती हैं। क्योंकि देखा जाए कि अगर एक तरफ कोई मुसीबत का वक़्त है या कोई आज़माइश है, तो देखा जाए कि इंसान से तमाम नेमतें तो नहीं ली जाती। बहुत सारी नेमतें मौजूद होती हैं और वो मौका तब भी शुक्र का होता है कि इंसान शुक्र अदा करे, अल्लाह से अपनी तकलीफ़ का इज़हार करे और उससे बचत का रास्ता माँगे। लेकिन अगर ये रवैया हो जाए कि इंसान मुकम्मल नाशुक्रा, बड़ा ही नाशुक्रा अल्लाह ताला ने कहा है, आम नाशुक्रे के अल्फ़ाज़ नहीं बल्कि साथ में बड़ा ही मतलब उसमें जो इज़ाफ़ा हो जाता है कि टोटल अल्लाह ताला की अच्छाइयों को, बातों को जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा करम किया होता है, उसको वो नहीं देखता। तो ये जो चीज़ है ना अल्लाह ताला ने जो इंसान की यहाँ पे बयान की है, तो ये वो मकामात हैं कुरान पाक के जहाँ पे हमें इन चीज़ों को नोट करना है कि इंसान को जो है ये चीज़ों से जो है ना मतलब पनाह माँगनी चाहिए कि इंसान की ऐसी हालत ना हो। आसमानों की और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह के लिए है, जो चाहता है पैदा करता है जिसको आसमानों की और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह के लिए है, जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियाँ देता है, जिसे चाहता है बेटे देते हैं। यानी अल्लाह ताला के हाथ में है कि किसको औलाद से नवाज़े और लिहाज़ा ये किसी भी अल्लाह के अलावा किसी भी कोई शख्सियत को इंसान कहे या इंसान आपस में झगड़ें कि औलाद के लिए जो-सा है वो कोई ज़िम्मेदार है, तो ये ऐसी बातें बिल्कुल गलत हैं। कोई भी अता नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। या इन्हें जमा कर देता है बेटे भी और बेटियाँ भी, जिसे चाहता है बाँझ कर देता है। यानी मुकम्मल तक़सीम अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। अब यहाँ पे इल्म भी उन्हीं को है कि वो उन्होंने किसको क्या अता करना है और किसको क्या देना है और वो क्या देने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि कामिल कुदरत से मुराद ये है कि मुकम्मल इख्तियार उनके हाथ में है, तो फिर किससे माँगना चाहिए कोई भी चीज़ हो। इस इन आयात से पहले तो पूरे कुरान में हमने मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल में पढ़ा कि अल्लाह ताला का की जो क़ुव्वत है पूरी किस तरह से ज़मीन और आसमानों के अंदर कायम है, क्या-क्या सिस्टम वो चला रहे हैं, क्या-क्या निज़ाम वो चला रहे हैं। अब ये बेटे और बेटियों की बात इंसानों के अंदर अगर आ रही है, इंसान की औलाद की, तो किससे माँगना चाहिए? कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं रहेगी जो अल्लाह की कुदरत में ना हो, मुकम्मल कुदरत है उनकी कि वो हर चीज़ का इंतज़ाम करके दे रहे हैं और ऑलरेडी वो दुनिया में चला रहे हैं। तो फिर इन्हीं की तरफ रुजू करना चाहिए ना। इन आयात का पेश करने का, बताने का मकसद ही यही है कि अल्लाह ताला जो है जिस तरफ इंसानों को एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि क्या कमी होती है ईमान के अंदर, तो उसको भी मुकम्मल करना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। नामुमकिन है कि किसी बंदे से अल्लाह कलाम करे मगर वही के ज़रिए या पर्दे के पीछे से या किसी फरिश्ते को भेजे, अल्लाह के हुक्म से जो चाहे वही करें। यानी अल्लाह ताला का जो है निज़ाम जो है बात करने का, बात को पहुँचाने का वही के ज़रिए है या किसी फरिश्ते के ज़रिए वही आए या इंसान पे डायरेक्ट आ जाए या फिर ये कि पर्दे के पीछे से, यानी कि अल्लाह ताला ने जो कलाम किया किसी से भी इंसानों से, तो वो इस तरीके की बिना पे है क्योंकि इंसान की जो हालत है, जो ज़ाहिरी उसकी सूरत है, उसमें ये चीज़ अभी मुमकिन ही नहीं कि दुनिया में अल्लाह ताला अपने आप को वो शो करें या इंसानों को दिखा सके। तो बेशक वो बरतर और हिकमत वाला है। ये तमाम जो अल्लाह ने सिस्टम रखा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हिकमत और विज़डम अल्लाह के पास है। इस चीज़ को अल्लाह ताला खुद बयान करेंगे, लिहाज़ा इंसान को इस चीज़ की समझ नहीं। और लिहाज़ा अब ये बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम से जो कलाम हुआ हो, जैसे कि कोहे तूर पे किया गया या पर्दे के पीछे से कलाम किया गया हो या जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मेराज में बुला करके किया गया हो और सफ़र मेराज में, और इसके अलावा जौन-सा है जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसे वही का पैगाम तमाम अंबिया पे लेके आए और पैगम्बरों को, इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने जिसको जैसे हिदायत और इल्म दिया है, तो ये अल्लाह ताला का कमाल है और उनकी उनकी ही हिकमत है। और इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म उनसे रूह को उतारा है। आप इससे पहले ये भी नहीं जानते थे कि किताब और ईमान क्या चीज़ है। अल्लाह ताला ने जो रूह के इल्म की बात की है कि रूह को उतारा है, रूह से मुराद यहाँ पे जो उनसे है मतलब ये कि ज़्यादातर रूहुल अमीन अगर लिया जाए, तो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो-सा है वो हज़रत जिब्राईल लेकर कहते हैं। और अगर रूह से मुराद जो कि ख़ास तौर पे उतारने से मुराद जो-सी है, अगर कुरान लिया जाता है जो कि हिदायत की रूह है, हिदायत का नूर अल्लाह ताला ने भेजा है जिसके अंदर तमाम दीन की रूह मौजूद है, तो वो कुरान पाक है। और जिसका कि इल्म जो-सा है इससे पहले अल्लाह ताला ने किसी को जो है वो नहीं दिया था। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कहा कि यहाँ पे इस चीज़ का जो है ज़िक्र है कि जिस चीज़ को चाहते हैं अल्लाह ताला हिदायत देते हैं अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं। तो कुरान पाक एक नूर भी है ना, रोशनी जिससे कि पता चलता है, रास्ता साफ नज़र आता है। अल्लाह ताला ने जिसे चाहते हैं, यानी कि जिसको नबी बनाना चाहा, जिसको इसके अलावा जो फ़ैसला कर दिया गया, वो चाहे किसी की दुआ पे हो या ये कि कोई पहले से फ़ैसला मुकर्रर हो, बात है कि जब अल्लाह फ़ैसला कर लेते हैं कि किसी को हिदायत देनी है, तो उसको वो नसीब होती है। और बेशक आप राह रास्त की राहबरी कर रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है अल्लाह ताला की जानिब से उनका नबी होना, उनका सच्चे राह पे होना, इस आयत से भी ज़ाहिर है कि वो राह रास्त पे हैं, सही रास्ते पे वो हैं और वो उसी की रास्ते की तरफ बुला रहे हैं। तो ये एक नबी और रसूल का जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, फ़र्ज़ होती है और यहीं से वो पहचानी जाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही सिफ़त है। उस अल्लाह की राह की जिसकी मलकियत है, जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है, यानी उसकी जानिब वो बुला रहे हैं। अगर वो सब काम अल्लाह की तरफ ही लौटते हैं कि नहीं, जो काम भी किया जाता है अल्लाह के यहाँ जमा होता है, हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर है, हर चीज़ को अल्लाह ताला अपनी निगाह में रखे हुए हैं और उस चीज़ को नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सूरह अश-शुरा जो-सी है वो मुकम्मल होती है और आगे जो-सी है सूरह अज़-ज़ुख़्रुफ़ जो-सी है वो शुरू होती है। सूरह अज़-ज़ुख़्रुफ़ जो है वो मक्की सूरत है और इसके अंदर 7 रुकू हैं और इसके अंदर 89 जो-सी हैं 99 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका तर्जुमा शुरू करते हैं। हामीम। आमीन। तो ये हरूफ़ मुक़त्तआत हैं और कसम है इस वाज़िया किताब की, हमने इसको अरबी ज़ुबान का कुरान बनाया है और क्या कि तुम समझ लो ये यकीनन ये लौह महफ़ूज़ में है और हमारे नज़दीक बुलंद मर्तबा हिकमत वाली है। अल्लाह ताला ने एक वाज़िया किताब की कसम खाई, किताब मुबीन की। तो ये किताब मुबीन जो वाज़िया किताब है, जो मुबीन जो है रोशन निशानी जिसको भी कहा जाता है, तो वो कौन-सी किताब बनी? ये कुरान पाक की बात की जाए, अल्लाह ताला ने इसको इसकी कसम खाई है। अल्लाह ताला की कसम खाना कोई आम चीज़ के ऊपर नहीं होता और उनकी कसम मामूली नहीं है। तो लाज़िम पता चलता है कि कुरान पाक की जो क़द्र व मंज़िलत है, इसके अंदर जो बातें हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक इसका क्या मकाम
काम है और ये चीज़ अल्लाह ताला ने आम सी कोई चीज़ हमें अता नहीं की, ये बहुत ही कीमती चीज़ है। हमने इसको अरबी ज़बान का कुरान बनाया था, अल्लाह ताला ने इसको इस ज़बान में उतारने का फ़ैसला उन्होंने खुद किया था और ये इसलिए था कि जिस इलाके में, ताकि तुम समझ लो, यानी जिस इलाके में ये उतारा जा रहा है, वहाँ के लोगों को अच्छे तरीके से उस एरिया में वो समझ आ सके। और यकीनन ये लोग हैं, और इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने इस अरबी ज़बान को, ख़ास तौर पे जो कुरान की अरबी है, जिसको कि कहा जाए कि अरबी कदीमिया है या कुरान की अरबी ख़ासुल ख़ास, तो ये जो अरबी है, ये बहुत ही फ़र्क है और ये इसके अंदर ये तासीर है इस किताब के अंदर कि ये अजमियों को भी जो है बड़ी तेज़ी के साथ याद हो जाती है और इसको सीखना, इसको समझना, इसका असर होना दिलों पे, वो तमाम इंसानों के लिए है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ़ किसी अरबी के ही मतलब उनको वो उसरा से आए, लिहाज़ा अलबत्ता ये है कि इस ज़बान को सीख करके इसके मतलब तक पहुँचना वो बहुत ज़रूरी होता है। यकीनन ये लोहे महफ़ूज़ में महफ़ूज़ है, यानी कि ये किताब असल में जहाँ से उतारा गया है, ये कलाम या सारी हिदायत, वो लोहे महफ़ूज़ जो एक बड़ी किताब उम्मुल कुताब में है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जहाँ पे इल्म लिख करके महफ़ूज़ किया है, वहाँ से आया है। हमारे नज़दीक बुलंद मर्तबा हिकमत वाली है, तो अल्लाह ताला के नज़दीक इसका बहुत बुलंद मर्तबा है और इसमें हिकमत और दानाई की बात है। क्या हम इस नसीहत को जो तुमसे इस बिना पर हटा लें कि तुम हद से गुज़र जाने वाले लोग हो, कि और हमने पहले भी कितने ही लोगों में नबी भेजे थे और जो नबी इनके पास आया उन्होंने उनका मज़ाक उड़ाया। तो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को जो कि नसीहत कहा है, यानी कुरान पाक कहा है और इसके मुख्तलिफ मानी लिए गए हैं इस आयत के, कि क्या है कि तुमसे नसीहत को इस बिना पर हटा लें, इस वजह से जो बात ये है कि जब कोई बहुत ज़्यादा गुनाहों में हो और उनको बार बार अल्लाह की नसीहत की जा रही हो, तो बाज़ दफ़ा जो है उनके ऊपर अजाब जब वो लाजम हो जाता है, तो फिर उनकी तबलीग और चीज़ें ये छोड़ दी जाती हैं या उनसे हटा ली जाती हैं। तो लिहाजा जो है अल्लाह ताला ने ये यही बात कैसे से किया कि तुम्हें वाज़ो नसीहत करना फिर इस तरह से छोड़ दिया जाएगा कि अगर जो इतना ज़्यादा अपने आप को गुनाहों में जो दिखाया जा रहा है, तो फिर इसका दूसरी तरफ मतलब क्या होगा, जब छूट दे दी जाती है तो उसके बाद फिर अजाब इलाही ही आया करता है, क्योंकि अगर जब तक नसीहत की जा रही है तो तब तक तो वक़्त मिल रहा है। तो हम अल्लाह ताला ने ये चीज़ भी बयान की कि पहले बहुत सारी उम्मतों के अंदर नबी भेजे गए थे, लेकिन उन लोगों ने अपने नबियों की तकज़ीब की थी। बस हमने उनसे ज़्यादा जो-सा है ज़ोर आवरों को तबाह कर डाला और बहुत से लोगों की, पहले लोगों की मिसाल गुज़र चुकी है। लेकिन फिर वो जो अपने आप को बहुत ज़ोर आवर भी थे, इंसानों से जसामत में भी ज़्यादा, जैसे आद और समूद की कौमें हैं, मुख्तलिफ कौमें जिनके पास टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको क्या किया कि उनको जो है एक लिहाज़ से उनके ऊपर भी फिर अज़ाब आया था। तो अगर जो कि अरब उस वक़्त हालत में जिनके पास ये नाज़िल हो रही थी किताब और इसके अलावा अहले किताब भी, तो वो तो इतनी ताकतवरी की हालत में नहीं थे जितनी पहले कौमें गुज़र चुकी थी। अल्लाह ताला ने उन दोनों कौमों को आपस में कंपैरिज़न करके बताया। अगर आप उनसे दरियाफ़्त करें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, यकीनन उनका यही जवाब होगा कि इन्हें गालिब और दाना अल्लाह ने ही पैदा किया है। यानी एक तरफ तो अल्लाह को मानते हैं, तो वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया है, उसने तुम्हारे लिए रास्ते कर दिए हैं ताकि तुम मुकर्रर कर दिए हैं ताकि तुम राह पा लिया करो। यानी रास्ते भी अल्लाह ताला ने बताए हैं राहों के, जाने आने के। तो इसने आसमान से एक अंदाज़े के मुताबिक पानी नाज़िल फरमाया, तो जो भी बारिश आसमान से होती है, अल्लाह ताला के इल्म में होता है, कितनी होनी है, कितनी ज़रूरत है, कहाँ तक कोई चीज़ आनी चाहिए दुनिया में, कहाँ पे क्या इंतज़ाम है, सब अल्लाह ताला के इल्म में होता है। बस हमने इससे मुर्दा शहर को ज़िंदा कर दिया। अगर बारिश ज़रा से भी ज़्यादा हो जाए तो इंसानों के लिए सैलाब का बायस होती है, कम हो जाए तो मतलब खेतियाँ नहीं इस तरह से जो है मुरझा जाते हैं खेत, तो अल्लाह ताला एक अंदाज़े से ही चीज़ को नाज़िल करते हैं। तो इसके बाद ये है कि जब वो बारिश किसी जगह पे होती है, तो उससे मुर्दा शहर को ज़िंदा कर दिया। तो ये वही की भी मिसाल है कि जैसे कि लोग पहले मुर्दा थे और वो नहीं हकीकत को जानते थे, और जब वही आती है, अल्लाह ताला की तरफ से कलाम आता है, कुरान आता है, तो वो हमें हराए हदायत सिखाता है और इंसान जो है नेकी के रस्तों की तरफ चलते हैं, एक तरह से उनको ज़िंदगी मिल जाती है, रोशनी मिल जाती है। और इसी तरह से तुम निकाले जाओगे, तो जिस तरह से बारिश बरसाने से ज़मीन से जो है मुर्दा ज़मीन जो है वो ज़िंदा हो जाती है, तो इसी तरीके से इंसान भी जो है ज़मीन से पैदा किए जाएँगे। अभी भी चीज़ अल्लाह ताला जैसे बयान कर रहे हैं, इस तरह से इंसान के ज़हन में नहीं आता कि किस तरह से होगा, लेकिन वैसे सोचा जाए तो आज तक कितने इंसान जो है मर के ज़मीन में मिट्टी बन चुके हैं या ज़मीन के अंदर दफ़न है। तो वो तमाम की तमाम इंसान जब एक साथ हुक्म होगा, तो एक जैसे कहा जाता है कि एक कब्र से 70 जो है मुर्दों का ज़िंदा होना, तो हर ज़मीन की हर जगह से जो-सा है इंसान की जहाँ पे बाक़ियात मौजूद हैं, तो वहाँ से जब वो इंसान ऐसे निकल रहे होंगे कि जैसे ज़मीन में से पौधा निकलता है, और जिस तरीके से बल्कि उसकी इससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ इंसान जो है वहाँ से निकल के पैदा होंगे और ज़िंदा खड़े हो जाएँगे एक साथ। तो ये बात है जिसको यहाँ पे बयान किया जा रहा है, जिसने तमाम चीज़ों के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए कश्तियाँ बनाए और जो पाए जानवर यानी कि 4 टाँगों वाले पैदा किए, जिन पर तुम सवार होते हो ताकि तुम उनकी पीठ पर जमकर सवार हो, फिर अपने रब की नेमतों को याद करो, सब इस पे ठीक-ठाक बैठ जाओ। कहो पाक ज़ात है कि जिसने कि हमारे इसे हमारे बस में कर दिया है, लेकिन हालाँकि हमें इसे काबू करने की ताकत ना थी। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भी अमूर हैं, जानवर हों, और ख़ास तौर पे जिसका यहाँ पे ज़िक्र किया जा रहा है, जिनके ऊपर सवारियाँ की जाएँ, तो ये कि सफ़र की भी ख़ास तौर के ऊपर ये दुआ पढ़ी जाती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, ये वाली दुआ। तो ये जो है अल्लाह ताला ने इसमें ये बयान किया कि ये जो सवारियाँ अता होती हैं, चाहे जानवर की, उस ज़माने में तो जानवरों की सवारियाँ होती थी, या आज के दौर में कोई भी सवारियाँ हैं, तो ये सब की सब अल्लाह ने मुसख़्ख़र की हैं कि हम इनसे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ताला की ये देन है। अल्लाह ताला और इसका तर्जुमा भी यही है कि अल्लाह ने हमारे बस में कर दिया, हालाँकि हमें इसे काबू पाने की हमें ताकत ना थी, और बिल्कुल हम अपने रब की तरफ वापस लौट कर जाने वाले हैं। उन्होंने अल्लाह के बाज़ बंदों को उसका जुज़ ठहरा दिया, यानी अल्लाह के साथ शरीक ठहरा दिया, अल्लाह की तरह का ही मतलब उनको मुकाम दे दिया। तो यकीनन इंसान खुल्लम-खुल्ला नाशुक्रा है। क्या अल्लाह ने अपनी मखलूक में से बेटियाँ तो खुद रखती हैं, तुम्हें बेटों से नवाज़ा है? क्योंकि मुशरिकीन जब तक ये बात को मान नहीं लेते, और जब तक कि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से बात को बयान फरमाया कि अल्लाह ताला जो है उनकी ज़ात इस चीज़ से पाक है कि उनकी कोई औलाद हो, लेकिन ये कि क्या बात है कि औलाद में भी जो ख़ास तौर पे जो बेटियाँ हैं वो तो अल्लाह ताला के लिए मुकर्रर कर दी गई, और बेटों को जो है वो अपने लिए तक़सीम के लिए रख लिया है। तो अल्लाह ताला ये सवाल करें, हालाँकि उनमें से किसी को भी जब एक चीज़ की खबर दी जाए, तो जिसकी मिसाल उसने रहमान के लिए बयान की, यानी बेटियाँ, तो खुद उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो गमगीन हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों की जो है साइकोलॉजी उसकी यहाँ पे साइकी यहाँ पे बयान की कि खुद तो वो इस चीज़ से इस तरह घबराते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए वो चीज़ चुन के उन्होंने मुकर्रर किया। क्या वो जो ज़ेवरात में पले झगड़े में अपनी बात को वाज़ेह ना कर सके, और उन्होंने फ़रिश्तों को और जो रहमान की इबादत का ज़ार बंदे हैं, औरतें
करार दे दिया है। तो ये बात ये नहीं कि अल्लाह ताला की यहाँ पे कोई औरत की कदर व मंज़िलत नहीं है या ये कि वो उस चीज़ को बुरा माने। बात ये है कि जो झूठ गढ़ा गया है उसके खिलाफ अल्लाह बोल रहे हैं कि कोई सी भी बात अपने पास से ना की जाए। और जो फ़रिश्ते हैं उनका तो अल्लाह ताला ने कोई जेंडर मुकर्रर ही नहीं किया, हमें तो आज तक नहीं इस चीज़ का मालूम, लेकिन कि उनको कह देना कि वो लड़कियाँ हैं और वो किस तरह से उनकी पैदाइश हुई, तो ये बहुत एक शर्मनाक बात और शर्मनाक किस्म का इल्ज़ाम है। क्या इनकी पैदाइश के वक़्त ये मौजूद थे और ये इनकी ये गवाही लिख ली जाएगी और उनसे इस चीज़ की बाज़पुर्स की जाएगी। कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम इनकी इबादत ना करते। तो मतलब कि ये जो चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं, हमें इन्हें इन्हें इसकी कुछ खबर नहीं है, तो सिर्फ़ अपनी तरफ से मतलब फ़िज़ूल की बातें बना रहे हैं, यानी झूठी बातें कहते हैं। क्या हमने इन्हें इन्हीं से पहले कोई इन्हें किताब दी थी जिसे वो मज़बूती से थामे हुए हैं? यानी कि ये बातें जो ये कर रहे हैं, क्या ये किसी किताब में लिखी हुई हैं? नहीं, नहीं, बल्कि ये तो कहते हैं कि हमने अपने बाप-दादा को एक मज़हब पर पाया। यानी कि जो एक गलत जो रस्म-ओ-रिवाज इन्होंने बना लिए थे, उसके बारे में आर्ग्यू करते हैं। हम इन्हीं के कदमों पे राह याफ़्ता हैं, यानी कि उन्हीं कदमों पे ये चलेंगे। और इसी तरह आप अपने से पहले भी जिस बस्ती में कोई भी जो है डराने वाला भेजा, तो वहाँ के आसूदा हाल लोगों ने यही जवाब दिया कि हमने अपने बाप-दादा को एक दीन पे पाया। यानी अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि इससे पहले भी तमाम कौमें जो-सी थी जहाँ जहाँ पे अल्लाह का दीन का पैगाम गया, तो वो इस चीज़ को कहते थे। हालाँकि देखिए, जितना भी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट करके रख ली जाए, लेकिन ये कि अगर उन लोगों को बिल्कुल नहीं उनके पास ये खबर पहुँची कि उनके बाप-दादा से भी पहले कोई ना कोई वहाँ पे नबी होगा कि जिसकी बातों को बिगाड़ करके इन्होंने आगे से अपने दीन को वैसा बना लिया जैसा कि इनका दीन अब है, तो और फिर ये क्या बात करते हैं, हम तो इन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी करने वाले हैं। तो नबी ने कहा कि अगरचे तुम्हारे पास इससे बहुत बेहतर और मकसूद, यानी कि जो पहुँचाने का तरीका, यानी कि जन्नत तक जाने का, कामयाबी तक पहुँचाने का तरीका हम लेकर के आया हूँ, वो उनके पास मौजूद हो, जिसमें तुम अपने बाप-दादा को पाओ, यानी उसकी निस्बत जो उनसे आपके बाप-दादा जो उनसे हैं, उनकी निस्बत एक बेहतरीन तरीका जो है अल्लाह ताला की तरफ से आया है और वो बात आई है, हिदायत आई है, तो वो पेश की। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम उसके मुनकर हैं, जिसे देकर कि तुम्हें भेजा गया है। तो अपने नबी को ये जवाब दिया गया, बस हमने इनसे इंतकाम लिया। तो फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो पहली बस्तियाँ हैं, जो पहली उम्मतें हैं, उनके साथ ये वाक़या हुआ था और देख लें कि झुठलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। और जबकि इब्राहीम ने अपने वालिद से, अपनी कौम से फरमाया कि मैं उन चीज़ों से बेज़ार हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, बजुज़ उस ज़ात के जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे हिदायत भी करेगा। और इब्राहीम इसको अपनी औलाद में भी बाकी रहने वाली बात कायम कर गए ताकि लोग आइंदा भी तौहीद की तरफ रुजू करें। यानी कि इब्राहीम ने यही बात, ये नसीहत अपनी औलाद को भी की थी, ताकि जो है उनकी जो नस्ल में भी आए, आइंदा जो दुनिया में लोग आएँ, तो वो इस चीज़ की तौहीद की तरफ रुजू करें। बल्कि इनमें से इन लोगों को, इनके बाप-दादा को मताए दुनिया से बहरा-मंद किया, यहाँ तक कि इनके पास हक़ को साथ-साथ सुनाने वाला रसूल आ गया और हक़ के पहुँचते ही ये बोल पड़े कि ये तो जादू है, हम इसके मुनकर हैं। तो अल्लाह ताला ने वो पूरी पीछे से हिस्ट्री उनकी फैमिली लाइन की हज़रत इब्राहीम से बयान कर दी, क्योंकि ये अरबी कुरैश मक्का भी अपने आप को हज़रत इब्राहीम की ही ख़ानदान से जो है वो ताबीर करते थे कि उन्हीं की नस्ल में से हैं। तो कहने की बात है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है बारे में बताया कि उनकी ज़ात जो थी तौहीद पे किस तरह से कायम थी। तो फिर इसी तरीके से जो बाद में जो लोग आए, उनके बाप-दादाओं को और बाकी तमाम जो लोग आते गए, दुनिया की ज़िंदगी और ये सारा आराम और आसाइशें अल्लाह ने दी हैं। तो फिर ये कि उसके बाद जो वक़्त गुज़रा, तो उनके पास जो वक़्त मुकर्रर पे ऊपर एक रसूल आ गए, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और हक़ के पहुँचते ही ये बोल पड़े कि ये तो जादू है, हम इसके मुनकर हैं। तो उस वक़्त ये क्या सलूक कर रहे हैं कि अब वो आ गई हैं, तो उनको ये कहा जा रहा है कि ये जादू है, नाउज़ुबिल्लाह। और कहने लगे कि ये कुरान इन दोनों बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर नाज़िल क्यों ना किया गया। उनके ख़्याल में जो कुरान का नाज़िल किया जाना था, वो किसी बड़े सरदार के ऊपर और जो इस तरह के लोगों के ऊपर होता है जिनके पास ऑलरेडी कोई दौलत और सबसे ज़्यादा उनके पास जो-सा है हुकूमत होती। क्या आपके रब की रहमत को ये तक़सीम करते हैं? यानी कि अल्लाह ताला ने जिसके ऊपर सिलेक्शन करनी है, वो तो अल्लाह ताला का काम है। तो क्या ये रहमत को तक़सीम करते हैं? यानी कि अल्लाह ताला की बात को ये बताएँगे कि किसको अल्लाह ताला नबी बनाए? हमने ही इन्हें ज़िंदगानी दुनिया की रोज़ी इनमें तक़सीम की है और एक-दूसरे को बुलंद किया है ताकि इनमें से एक-दूसरे के मातहत कर ले, जिससे ये लोग समेटे फिरते हैं, यानी दुनिया की दौलत और ये दुनिया का रोब और दबदबा ये अल्लाह ने दिया है, और ताकि ये देख सकें कि को किसी को बड़ा बना दिया, किसी को छोटा बना दिया। तो इससे कि आपकी रहमत बहुत ही बेहतर है। तो जो चीज़ ये कर रहे हैं, समेटे फिरते हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह की रहमत बहुत बेहतर है कि अगर ये नबी को समझते हैं कि उनके पास इतनी दौलत और इतना रोब और दबदबा नहीं है, तो अल्लाह की रहमत ज़्यादा बेहतर है। ये जो दीन है, ये इसके ऊपर चलना और आखिरत में इसका जो मामला है, वो ज़्यादा बेहतर बात है। तो अगर ये बात ना होती, तो हम लोग एक ही तरीके के हो जाएँगे, तो फिर रहमान के साथ कुफ़्र करने वालों के घरों को, छतों को हम चांदी की बना देते, ज़मीनों को भी जिन पर चढ़ा और ज़ीनों को भी जिन पर चढ़ा करते। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अगर ये चीज़ ना होती कि सब लोग एक ही तरीके पे हो जाएँ, यानी कि लोगों को अगर ये शौक हो रहा था कि उस तरह की बात होती, तो अल्लाह ताला को अगर ये चीज़ की परवाह ही ना होती कि किसी को हिदायत दी जाए या क्या किया जाए, तो दुनिया का माल तो इस तरह से दे दिया जाना था कि छतें भी चांदी की हो जाती और जो सीढ़ियाँ हैं वो भी, यानी इस तरह की दौलत दे दी जाती कि ये इसका अंदाज़ा भी ना कर सकते। उनके घरों के दरवाजे तक भी जिन पर वो तकिया लगा-लगा के बैठे और सोने के भी, और ये सब कुछ यूँ ही सा दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा और आखिर तो आपके रब के नज़दीक सिर्फ़ परहेज़गारों के लिए है। तो जितना कुछ भी अगर दे दिया जाता है, जिस तरह कि अल्लाह ताला एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दुनिया में हर चीज़ कीमती तरीन हो जाती, अच्छी से अच्छी जिस तरह से लोग समझते हैं, तो तब भी इसने तबाह होना है और आखिरत में जो-सा है वो फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो परहेज़गार हैं, जो इस दुनिया में अल्लाह ताला की कहने के ऊपर लग करके उन चीज़ों से अपने आप को बचा रहे, अपना दामन भी बचा रहे हैं जो अल्लाह ताला ने कहा है कि नहीं करनी। तो जो शख्स रहमान की याद से गफ़लत करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, वही इसका साथी रहता है। अब बात ये है कि एक जानिब अल्लाह ताला ने पहले कुरान की आयत में जो है वो ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला के यहाँ पे तो फ़रिश्तों के ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो अहले ज़मीन के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। ये तो अल्लाह ताला के साथ शामिल हो जाने का आज़ाद है। लेकिन एक तरफ वो भी लोग हैं कि जो अल्लाह ताला की याद से रुकते हैं, अल्लाह की राह से लोगों को रोकते हैं, यानी कि वो शैतान के रास्ते पे चलते हैं, तो फिर उनके साथी क्या मुकर्रर किए जाते हैं? शैतान। तो वो इन्हें इस राह से रोकते हैं, उसी ख़्याल में रहते हैं कि ये हिदायत याफ़्ता है। तो वो उस आदमी पे जो शैतान होता है, वो उसको नेकी की राह से रोकते हैं और उसको उस ख़्याल में मगन रखते हैं, उसके अंदर ये चीज़ें पैदा करके कि वो सही है, वो सही रास्ते पे चल रहा है। हिदायत याफ़्ता है। यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो कहेगा, काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक़ और मग़रिब की दूरी होती, तू तो बड़ा बुरा साथी। तो उस वक़्त वो अपने उस साथी शैतान की हकीकत जानेगा कि ये ख़यालात कहाँ से आ रहे थे और उसको वो बुरा साथी कहेगा।
और जबकि तुम ज़ालिम ठहर चुके, तो तुम आज हरगिज़ तुम सबका अज़ाब में शामिल हो जाना कोई नफ़ा ना देगा। तो बात ये है कि जब सबके सब एक साथ ही जमा होंगे, वो शयातीन भी, इंसान भी, तो सबको एक साथ जो-सा है वो चीज़ मिलेगी और वहाँ पे अब किसी किस्म का अब इनको फ़ायदा नहीं मिलने लगा। क्या आप एक-दूसरे का साथ भी नहीं दे सकते? क्योंकि अज़ाब भी इस किस्म का होगा। क्या बस तू बहरे को सुना सकता है या अंधे को राह दिखा सकता है? तो अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया कि जो अंधा होता है या जो बहरा होता है, इनके अंदर तो ये सलाहियत ही नहीं है, कोई एक चीज़ जिसकी ये कमी है, किसी के अंदर सुनने की, किसी के अंदर आँखों की, तो यहाँ पे कौन किसकी मदद कर सकता है? किस तरह से उसका सारी ज़िंदगी साथ दे, सारा उसको रास्ता दिखाए? तो बात ये है कि अल्लाह ताला जो है ना ये जो ताकत है अल्लाह के अपने पास है, वो किसी और दूसरे इंसान के पास भी नहीं। हत्ता कि नबी से भी ये सवाल किया जाता है, उसे जो खुली गुमराही में हो, तो जो गुमराही में होता है उसकी मिसाल ऐसे ही अंधे और बहरे की है, कि उनको कोई बात समझ भी नहीं आ रही, उनको बात नज़र भी नहीं आ रही कि वो फैसला कर सके। बस अगर हम तुझे यहाँ से ले भी जाएँ, तो भी हम इनसे बदला लेने वाले हैं। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से ले जाया जाए और वहाँ पे जो है उनको किसी और जगह के ऊपर मतलब है कि ले जाया जाए, जैसे कि उनकी हिजरत भी हुई थी। तो ये है कि ये हम इनसे बदला लेने, और इसके अलावा ये भी है कि अगर उनको उनको जो है वो उनकी ज़िंदगी जो-सी है वो दुनिया में जो है मतलब उनको वहाँ से उस मौत से पहले या उनकी मौत के बाद जो है कि ये जो है इनसे बदला जो है वो लिया जा सकता है, या जो कुछ इनसे वादा किया है गया है वो आपको दिखा दे कि हम इन पर भी कुदरत रखते हैं। और जो वादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बताया जा रहा है अज़ाब का, तो वो भी दिया जा सकता है। बस ये जो वही आपकी तरफ की गई है, इसे मज़बूती से थामे रहें, बेशक आप राह रास्त पर हैं और यकीनन ये खुद अपने के लिए, आपके लिए और आपकी कौम के लिए नसीहत है। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को ये जो बातें इनको नसीहत कहा है, और अनकरीब तुम लोग पूछे जाओगे। हमारे यानी कि नामा माल का सवाल और जवाब होना है, और हमारे उन नबियों से पूछो कि जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा था, क्या हमने सिवाय रहमान और उसके माबूद मुकर्रर किए थे कि जिनकी इबादत की जाए? और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियाँ देकर फ़िरौन और उसकी उमरा के पास भेजा, तो मूसा ने कहा कि मैं तमाम जहानों का रब और रसूल जो हूँ। तो मूसा ने जब उनको कहा कि मैं तमाम जहानों का रब का रसूल हूँ, तो यानी कि उन्होंने अपने आप को रब नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि वो रब के रसूल हैं, उनकी जानिब से पैगाम दिए गए हैं, वो पैगाम लेके आए हैं। और फिर जब वो हमारी निशानियाँ लेकर उनके पास पहुँचे, तो वो बेसाख्ता उन पर हँसने लगे। तो वो निशानियाँ मौजज़ात थे जिनको कि वो जादू टोना समझ के उनके ऊपर उनका मज़ाक उड़ा रहे थे। तो पहली बात है कि जब बात ही समझ ना आए, हकीकत को जानने की कोशिश ही ना करें, और वो अपने आराम की कम्फ़र्ट ज़ोन के अंदर जो थे वो उन्होंने उनको हँसी मज़ाक में उड़ा दिया। हमने इन्हें जो निशानी दिखाते थे वो दूसरी से बड़ी चढ़ी होती थी। यानी कि जो भी अल्लाह ताला ने उन पे मौके आए अज़ाब के उनको झिझोड़ने के लिए, तो वो एक से बढ़ के एक बातें थी। हमने इन्हें अज़ाब में पकड़ा ताकि वो बात आ जाए। उन्होंने कहा कि ऐ जादूगर, हमारे लिए अपने रब से उसकी दुआ कर कि जिसका इसने तुझसे वादा कर रखा है। तो उनको अच्छे नाम से पुकारने की बजाय, जो उनका नाम था या उनका दर्जा था कि वो नबी थे, उसकी जगह उन्होंने कहा, उनको इस तरह बुरे तरीके से पुकारा कि ऐ जादूगर, कि मतलब तू अपने रब से दुआ कर जिसका उसने तुझसे वादा कर रखा है, यकीन मान के हम अलग राह पे हम राह पर लग जाएँगे। यानी कि वो कबूल कर लेंगे दीन को और नेकी का काम करेंगे। तो जब उनके ऊपर तकलीफ़ आती थी, तो इस तरह से मज़ाकिया तरीके से ही जो है वो मज़ाक उड़ा के जो है वो उनसे बात किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने जो यहाँ पे निशानियों का ज़िक्र किया कि जब अल्लाह ताला ने उनको निशानियाँ जो भेजी थी, तो वो उन मोजज़ात के अलावा थी। जैसे इन निशानियों से मुराद है तूफ़ान, टिड्डी दल, जुएँ, मेंढक और खून वगैरह की शक्ल में जो वाक़यात हुए थे फ़िरऔन के साथ, उसका ज़िक्र किया जा रहा है। तो फिर जब वो इस तरह का फ़ॉल्स प्रॉमिस करते थे, और फिर जब हमने वो अज़ाब उनसे हटा लिया, तो उसी वक़्त वो अपना कौल व करार तोड़ दिया, और फ़िरऔन ने अपनी कौम में मुनादी करारी कि ऐ मेरी कौम, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है, और मेरे नहरों के नीचे जो ये नहरें बह रही हैं, क्या तुम नहीं देखते? क्या मैं बेहतर नहीं हूँ बनिस्बत इसके जो बेतौकीर है और साफ़ बोल भी नहीं सकता? अब मूसा अलैहिस्सलाम का ना बोल सकना भी फ़िरऔन के लिए एक जो है वो टेस्ट था, क्योंकि जो उनकी सलाहियत थी, अल्लाह चाहते तो उनकी वो मुकम्मल वो जो है वो चीज़ ठीक कर देते। लेकिन बात ये है कि जिस तरह से उन्होंने दुआ माँगी थी, तो जब वो तबलीग कर रहे होते थे, तो उस वक़्त ये प्रॉब्लम उनके साथ नहीं होती थी। और बड़ी फ़सीह तरीके से वो अपनी बात को बयान करते थे, और बात ये है कि जो फ़िरऔन है, उसने उनका ना सिर्फ़ मज़ाक भी उड़ाया, और अपने अपने बातों को मनवाने के बाद और वहाँ पे अपनी कौम को उसने इस तरह से अपने साथ मिलाने की कोशिश की। वो ये समझ रहा था कि जिस तरह से जितने ज़्यादा लोग उसके साथ होंगे, तो वो ये मामला जीत जाएगा, चाहे वो गलती पे ही क्यों ना हो। जैसे कि बहुत सारी जगहों पे इंसान आज भी ऐसे करते हैं कि गलती करके वो उस पे डट जाते हैं, अपने साथ लोगों को मिलाने की कोशिश करते हैं, एक प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हो जाती है। तो बात ये है कि ये बात तो प्रोपेगेंडा तो नहीं थी। उन लोगों को तो जिस चीज़ का हुक्म दिया गया था, तो वो एक बाकायदा तरीके से अल्लाह ताला के यहाँ होनी मुकर्रर थी, तो वो उसी तरीके से वो हुई उनके साथ। लेकिन ये कि वो उस चीज़ को हकीकत को नहीं समझा था, और बार-बार जो उसको चीज़ें दी थी, वो किसने दी थी? अल्लाह ने। उसको जो महल मिला था, उसके नीचे जो नहरें बह रही थी, उसकी जो बादशाही थी, और वो जो है अपने आप का मुकाबला जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर रहा था कि जी ये तो बेतौकीर हैं, ये तो साफ बोल भी नहीं सकते, और मैं उनके मुकाबले में कितना अच्छा और वो उस तरह से हूँ। और अच्छा, इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं उतरे? तो मतलब वे कि वो उनको ये कह रहा था कि उनके पास इतनी भी दौलत नहीं कि वो अपने आप को सजा बना के, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो एक बादशाह था अपने दौर का, सल्तनत का एक सुपर पावर, तो वो अपने हाथों में सोने के कंगन और दौलत का इज़हार करता था। और अब यही चीज़ वो अपनी कौम को बता रहा है कि अगर ये इतनी कदर मंज़िलत वाले हैं, तो इनको जो है सोने के कंगन क्यों नहीं इन्होंने पहने? यानी कि जो सोने के कंगन पहनता था, वो उसकी बहुत एज़ाज़ की, उसकी मतलब उसकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा समझा जाता था, दुनिया के लिहाज़ से कि उसका दर्जा बहुत ऊँचा है। यहाँ इसके साथ पर बाँध कर फ़रिश्ते ही आ जाते, बस उसने अपनी कौम की अक्ल खो दी। इस तरह के खिताब कर के उसकी कौम जौन-सी थी, जब वो बातें करता था, वो उनके पीछे उड़ते। आज के दौर में भी ये सोचना चाहिए कि जो लोग अपने अंदाज़े बयाँ से अल्लाह के रास्ते से हटाते हैं, बहुत सारे लोगों को दीन की राह से बेराह करते हैं, तो कल को जब वो उनके साथ उनके जो लोग उनको मानने वाले हैं और वो दोज़ख में जाएँगे, तो वो एक-दूसरे के साथ ही वो दाखिल होंगे, क्योंकि दीन के खिलाफ भी जिस तरह के सारे महाज़ खुले हुए हैं।
जैसे कि फ़िरौन ने उस वक़्त खुला हुआ था और उसको बहुत दौलत और ताकत भी थी और वो इस चीज़ का इस्तेमाल गलत कर रहा था, तो आज के दौर में भी ऐसे इस्तेमाल होते हैं, उनसे हमें होशियार होना चाहिए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्होंने उस कौम ने उनकी जो है उसकी अकल खो दी और उन्होंने उसकी मान ली, यानी उस कौम ने उसकी मान ली फ़िरौन की, और यकीनन ये सारे ही नाफ़रमान लोग थे। तो सब एक हो गए ना, एक ग्रुप बन गए। फिर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और सबको डुबो दिया। तो बस तो हमने इन्हें गया गुज़रा कर दिया और पिछड़ों के लिए मिसाल बना दी। अब जब इब्न मरीम की मिसाल बयान की गई तो उससे तेरी कौम तो खुशी से चीखने लगी कि उन्होंने कहा कि हमारे माबूद अच्छे हैं या वो, तुझसे इनका ये महज़ कह देना कि झगड़े की गर्ज से है कि बल्कि ये लोग हैं ही झगड़ालू। तो यहाँ पे जिस चीज़ को बयान किया गया है, क्योंकि अहले किताब जो थे वो जिस किस्म के शिर्क में मुब्तला थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह ताला के मतलब साथ शरीक ठहराते थे, उनका बेटा बना के नाउज़ुबिल्लाह। तो इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मतलब कहना चाहिए कौम थी कुरैश मक्का, तो जो कि मुशरिक थे, वो इस किस्म की मतलब बात के ऊपर मतलब झगड़ा करते थे कि देखें कि एक तरफ ये जो हज़रत ईसा को जो कि अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनको इस तरह से पूजा जा रहा है, तो फिर जो उनके बुत हैं, वो भी तो पीछे से कोई नेक लोग ही हैं और इसी तरह से वो भी ये काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे माबूद अच्छे हैं या वो? तो इस बात के ऊपर ये आयत उतरी कि आपका इनसे ये कहना महज़ झगड़े की गर्ज है कि बल्कि ये लोग हैं ही झगड़ालू। तो ये जो जिस भी तरह से बात बयान करके लेके आ रहे हैं कि क्योंकि वो अपनी गलत बात को जो है सही साबित करने के लिए दूसरों में गलतियाँ निकाल कर के अपनी गलती को जस्टिफ़ाई करना चाह रहे थे। तो ईसा भी सिर्फ़ अल्लाह के ही बंदे हैं जिस पर हमने एहसान किया और उसे बनी इसराइल के लिए निशानी कुदरत बना दिया। ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला के नज़दीक बंदे ही हैं, लेकिन उनकी पैदाइश किस तरह से होती है, लेकिन बहरहाल अगर वो फ़र्क तरीके से मुअजिज़ाना तरीके से है, तो भी अल्लाह ताला ने उनको एक अपना कुदरत का निशान के तौर पे पेश किया था कि अल्लाह ऐसे भी पैदा कर सकते हैं।